जिसपे n लिखा आ रहा है उसको बनाइएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। Better today we are going to start with alkanes and alkyl radicals. So it's page number 66. You can open your books as well. Okay. Till here, if you find any confusion, any problem, you can ask me right now. Elsa, should we start the lecture? Any confusion? Yes, start. I don't have any confusion. Okay. Daniel, unmute your mic. So let's start the class. Okay जी, कल हमने बात की थी about the sources of organic compounds. We have discussed till that how many sources of organic compounds, how they are extracted, and what is the composition of coal, petroleum, and natural gas. Right now we are moving on page number 66. That is quite important topic, and it's very important कि आप इसका concept understand करें. There is no need for rata. You just need to understand it, that what's in it. We are going to start with alkanes and alkyl radicals. Now already we have discussed about alkanes. um, you must know what is the common formula, what is the general formula, it's more precise to say, for alkanes. Anybody tell me? Elsa, can you please tell me? Yes, Elsa, can you please tell me the general formula of alkanes? C6H2N plus 2. No, that's not that. चले मैं आपको बताती हूँ. Basically जो, yes Abibullah, what you are saying? It's written in the book CnH2n plus 2. Yeah, it's C, and Elsa said C6. Might be he said N and I didn't listen it. So the general formula is CnH2n plus 2. मैंने जब आपको start कराया था alkane, at that time I have also told you that there is a general formula for all homologous series. Homologous series क्या है? वो सारी series जिसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक आपको बताया जाता है कि यहाँ पे एटम्स की ज्वाइनिंग इस तरह से हाइड्रोजन के साथ होगी, राइट? So over here you can say it's written on your book as well that the general formula for alkane is CnH2n plus 2. All of you can just highlight it as well, just for the sake of remembrance. Now you can see that alkanes are saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon means having only single bond. Alkanes में double or triple bond नहीं होता. Wherever double and triple bond is going to be present, वहां पर क्या होगा? अनसैचुरेशन आ जाएगी. ठीक है, हम इस चीज को अनसैचुरेशन में मेजर करते हैं, यानी जहां पे भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वी विल सेड दैट इट इज गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड बॉन्ड. बट अल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं बिकॉज इट कंटेन्स ओनली अ सिंगल बॉन्ड. सो यू कैन से दैट अल्केन्स जो है वो सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. ठीक है, और इनका जो दूसरा नेम है दैट इज आल्सो नोन एज पैराफिन्स. नाउ पैराफिन्स में क्या है? पैरा मींस लिटिल, लिटिल बिट. एफिन्स मीन एफिनिटी, अट्रैक्शन, कि उसकी कितनी अट्रैक्शन बनती है दूसरे बॉन्ड्स के साथ. सो इनमें सिंगल बॉन्ड है तो इनमें ये दे आर सैचुरेटेड, दे हैव वेरी लिटिल एफिनिटी फॉर ईच अदर, राइट? ये उनके नेम के बारे में था. व्हाट इज द नेम ऑफ अल्केन? अदर नेम पैराफिन्स, राइट? एंड देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n plus 2, where n जो है वो number of carbon atoms है, and in case of alkanes n ranges from 1 to 40, means जो carbon atom है वो range कर सकते हैं from 1 to 40. We have discussed in homologous series only 1 to 10, जहाँ पे आपने पढ़ा था decane तक, जहाँ पे carbon atoms 10 है. If you move on the page number 55, over there you can see decane carbon 10 है. ठीक है, तो यहाँ पर बाय मैक्सिमम जो है वो इट कैन गो टुवर्ड्स 40.
So we can say it can ranges from 1 to 40 atoms, right? So in this way, alkanes form the more important homologous series of compounds, means they have the tendency to form bonds till 40 कार्बन एटम्स। तो जो सोचे लास्ट 40 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग, क्योंकि उसके 40 कार्बन एटम्स हैं और उसके साथ ही हाइड्रोजन की उतनी ही मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, तो दैट हैव्स मोर टेंडेंसी to give reactions. Now coming towards another terminology, you can see which is homologous series. Homo means same, logos series मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सारे का सारा हमारा टेबल है, you can also see it on page number 67. इस सारे के सारे हम टेबल को, इस सारी की सारी जो प्रेसिडेंस चलती जा रही है, we call it homologous series. इसमें कार्बन एटम्स की जस्ट इंट्रोडक्शन होता जाएगा, एक एक कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट्स गोइंग ऑन, हाइड्रोजन एटम जो है वो उसी के लिहाज से एडजस्ट होते जाएंगे, बिकॉज कार्बन की टेंडेंसी है कि वो एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है, आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली। तो उसी लिहाज से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। यू जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड के जब हम अल्केन्स पढ़ रहे हैं उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। जब हम अल्कीन्स पढ़ेंगे आगे तो उनका फॉर्मूला कुछ और होगा, जब हम अल्काइंस पढ़ेंगे इसकी थर्ड कैटेगरी तो उनका फॉर्मूला दैट विल बी डेफिनेटली चेंज। Now coming towards homologous series, you can see here it is written 2017. It is important question regarding exam point of view कि आपको पूछा जा सकता है कि what are the characteristics of homologous series, ठीक है? ये जब आपको रजिस्टर्स वापस मिल जाएंगे then you are supposed to do this homework. Right now hopefully आप लोगों ने सबमिट करा दिए होंगे या आज आप करवा देंगे, whatsoever you will do it. So just wait a minute. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट होमोलोगस सीरीज, दैट होमोलोगस सीरीज क्या है कि उसी की आगे से फर्दर कैटेगराइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट? होमोलोगस बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया ग्रुप्स में बिकॉज ऑफ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज डू मैटर बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्यादा मैटर करती हैं। नाउ हियर इज द क्वेश्चन हाउ, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो इसके पीछे बेटे रीजन ये है कि जो हम उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इन द चैप्टर 1 आपने पढ़े होंगे कि हर एक का फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। लेट्स से मैं अगर बात कर रही हूँ आपसे अल्कोहल की किसी लाइक फिनोल, फिनाइल, इस तरह से इनके अंदर डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू वो फंक्शन करते हैं, राइट? वो हर एक के अंदर डिफर करता है और उसकी वजह से हम किसी की भी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? Now each group is known as a homologous series. Organic compounds of the same homologous series have the following properties in common. Number one, these are 5 characteristics of homologous series. We are going to discuss one by one. Number one, अब इधर जो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज अल्केन, नंबर 2 इज अल्कीन्स। यू कैन सी देयर इज अ करेक्शन इन योर बुक, इट्स रिटन अल्केन्स, सो इसको आप करेक्ट कर लें, इट्स अल्कीन। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट फॉर यू एज वेल, this which I have highlighted with the yellow color। यहाँ पे लिखा हुआ है ALKANES, को काट कर आप लिखें ALKENES, because alkane is the first category, alkenes is the second category, वहाँ पे E आएगा, ठीक है? Habibullah, did you get it? What did I say? Habibullah? Okay, fine. And what about you, Fatma? Did you get it? What did I say? मैंने जो correction करवाई है अभी? Yes, miss. Okay, fine. Okay, so let me erase it now. तो 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज अल्केन, नंबर 2 इज अल्कीन्स एंड द थर्ड वन इज अल्काइंस। नाउ देयर आर जनरली जनरल formula for each. For alkane you can see CnH2n+2,
जो हमने अभी जस्ट याद की है। देन इफ वी टॉक अबाउट अल्कीन्स, उनमें डबल बॉन्ड होता है। द फॉर्मूला विल बी CnH2n ओनली 2n। हाइड्रोजन में 2 एटम्स उसके जाके नहीं होंगे बिकॉज वहां पे 2 बॉन्ड्स आ जाएंगे। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एंड कमिंग टुवर्ड्स अल्काइंस, अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 मींस जो हाइड्रोजन कार्बन वहां है कार्बन के साथ अटैच, हमने उसमें से 2 को डिडक्ट कर देना है बिकॉज अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, so this was the general formula of all the 3 categories: alkanes, alkenes and alkynes. Again I am telling you, alkane are saturated, means having only one bond, single bond. Alkenes and alkynes are unsaturated hydrocarbons, alkenes having double bond and alkynes having triple bond in it. And there is a formula for alkane. Alkane is CnH2n plus 2. Alkene is CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2. इसमें माइनस इसलिए हो रहा है कि अल्काइन में 3 बॉन्ड आ जाते हैं जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी इस तरीके से सेटल डाउन होगी। Now coming towards about their molecular masses. What about the molecular masses? Now they said successive members of the C rays differ by 1 unit of CH2. CH2 उसका एक ग्रुप है, ठीक है, जो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे अल्काइल रेडिकल में। and 14 units in their relative molecular mass, means अगर let's say मीथेन का वेट जो है that is going to be 12 plus 4, कार्बन का वेट है 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, 13 14 15 16, मीथेन has 16 weight. Then what is the weight of ethane? Who can calculate the weight of ethane? Raise your hand. Formula of ethane is C2H6. What is the weight? Anyone? Raise your hand. Habibullah, can you calculate the weight of ethane? Yes, better speak up. No, miss. Why? You didn't know how to calculate that molecular weight? नाइन्थ में याद था, नाइन्थ अभी छोड़े कितनी देर हुई है। चले मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑन योर रजिस्टर्स एंड योर वीडियो इज नॉट ऑन टुडे। हाँ जी, लिखवाऊं फॉर्मूला C2H6। हैव यू रिटन दैट? Habibullah, have you written? Yes, miss. Okay, now think about it. How are we going to calculate the molecular weight? Any idea, any wild guess? No? It's the number of atoms multiplied by the mass number. हाँ जी, कैसे करेंगे number of atoms? How many carbon atoms are there? It's 2. 2. What is the weight of carbon? Forget? Yes, miss. It's 12. What we are going to do? 12 multiply by 2 or 12 plus 2? We are going to multiply, yes. 12 multiplied by 2, what comes? 24. 24. And how many hydrogen atoms are there? 6. What's the weight of hydrogen? 2. क्या वेट है हाइड्रोजन का? नहीं पता मिस।
बेटे हाइड्रोजन जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, सो इट हैज एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, इसका वेट सबसे कम है, इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो इसका जो वेट है वो 1 है। इफ देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम इट मींस कितना वेट होगा 6। नाउ यू कैन ऐड ऑन 24 plus 6। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 30. 30। And what is the weight of methane? What is the weight of methane? Can you please calculate? अगर आप इसको खुद से कैलकुलेट नहीं करोगे you are not going to get it कि ये हम दूसरा पॉइंट क्या डिस्कस करने लगे हैं। Do it ताकि आपको समझ आए। Please find out the weight of methane. जल्दी से बताएं, I'm waiting for you. कार्बन का वेट है 12 and hydrogen you know it has only 1 atomic weight. So how much? 16. 16. Now can you please find out the difference between two? इथेन और मीथेन में वेट जो आपने वेट निकाला, व्हाट इज द वेट ऑफ इथेन? Ethane. इट्स 30 बेटे, इट्स 30। Yes, ma'am. एंड Yes, I was- मीथेन 16. 16। फाइंड आउट द डिफरेंस। 30 minus 16 क्या आया? 14. 14. 14। अब हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट को। अब जरा रीड करें सेकंड पॉइंट को, सक्सेसिव मेंबर्स वाला। रीड इट। Successive members of the series differ by 1 unit of minus CH to minus and 14 units in their relative molecular mass. समझ आई कितना हमने डिफरेंस निकाला था? 14। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सक्सेसिव मेंबर्स आते जाएंगे, मीथेन के बाद इथेन आया, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उनका जो मोलेकुलर वेट है उनकी 14 यूनिट से डिफर करेगा। आप देखें मीथेन और इथेन दोनों के वेट में 14 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो सेम यही बात वो कर रहे हैं कि हर होमोलोगस सीरीज का जो सक्सेसिव मेंबर होगा वो डिफर करेगा हर यूनिट के CH2, मतलब उधर चेंज होगा, और साथ उसका मोलिकुलर वेट 14 यूनिट जो है वो चेंज करेगा। मींस इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 14 नंबर्स। लाइक अगर अब आप इथेन और प्रोपेन में फाइंड आउट करने, नेक्स्ट जो टेबल है ना पेज नंबर 67 पे, यू कैन गो ओवर देयर। if you try to find out the weight of propane and then you find out the weight of ethane which is 30, इन दोनों का डिफरेंस आप मेजर करेंगे, there is the answer of 14. so it means कि हर सक्सेसिव मेंबर का पिछले मेंबर से 14 मोलेकुलर मास में जो है वो डिफरेंस होगा। समझ आ गई इस बात की? Yes, miss. ओके गुड, वी आर मूविंग ऑन द थर्ड वन। सिर्फ मेरा करवाने का मकसद आपको ये था कि आपने जब हाथ से अपने किया है, यू मस्ट रिमेंबर इट। इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूलाज, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आगे आगे जाके आपको चीजें डिफिकल्ट लगेंगी। अगर कोई चीज नहीं आती, सिंपली से टीचर आई डोंट नो, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, नो इशू विद दैट। नाउ कमिंग टू वर्ड्स नंबर 3, they have similar chemical properties. अभी मैंने आपको बताया था at the start of lecture that what is the reason of chemical properties. Yes, Fatma, can you please tell me? At the start of lecture I have told you what is the reason behind chemical property. किस चीज की वजह से हर एक की chemical property differ करती है? फातिमा। मिस मैंने बाद में ज्वाइन की थी क्लास। Okay, that's okay. Who is going to tell me? Harun, can you please tell me? Fatma, unmute your mic. Okay. Harun Naveed, beta, can you please tell me? No. Elsa, can you please tell me what is the reason behind chemical properties? कौन सी चीज determine करती है कि how it is going to react chemically? Their structure. Their structure, but what's important in that in organic compounds? उनका स्ट्रक्चर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। No. उनके अंदर अभी मैंने आपको स्टार्ट ऑफ लेक्चर में बताया था, दे हैव अ फंक्शनल ग्रुप। उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है जो कि डिटरमिन करता है हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल का अगर फंक्शनल ग्रुप COO बॉन्ड है तो इट इज बेसिकली द रीजन दैट हाउ इट इज गोइंग टू रिएक्ट केमिकली, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इसका आंसर है। ऐसा म्यूट कर दे माइक को बेटे। और यही बात वो सेम थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। लाइक अगर हम बात करें अल्केन्स की तो इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज समहाउ एक जैसी होंगी बिकॉज इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक जैसा होगा, ठीक है। नंबर 4, देयर इज अ रेगुलर चेंज in their physical properties. The melting and boiling points increase gradually with the increase of molecular masses. Means if we go on page number 67, मीथेन का melting point सबसे कम होगा और डिकेन का melting point सबसे ज्यादा होगा. Reason is their molecular masses, right? So जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दैट आर ड्यू टू देयर मोलेक्युलर मैसेज. जितना मोलेक्युलर मैस वेट ज्यादा होगा उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि थोड़ी चीज को मेल्ट होने में जल्दी टाइम लगता है बट व्हेन इट इज इन बल्क मोलेक्युलर मैस इज ग्रेटर, इट रिक्वायर्स मोर टाइम. नंबर 5, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड्स. मींस इनको एक ही जैसे जब इनको सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, इनकी प्रिपरेशन की जाती है somehow एक जैसे ही प्रोसेसेस को यूज किया जाता है. Now there is another thing we are going to discuss now, that hydrocarbons are regarded as parent organic compounds. Means इन्हीं से आगे हमने further derivatives इनके बनाने हैं. Now we are going to another derivative जिसको हम बोलेंगे alkyl radical. alkane से बनेगा. All other compounds are considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon by one or more reactive atom or group of atoms. Means जैसे हमारे पास CH4 है, अगर हम इसमें से एक CH2 को हटा दें तो हमारे पास CH3 रेडिकल रह जाएगा. Now moving on. Moving on the other page, you can go on page number 67 as well. अब हम alkyl radical की बात करने लगे हैं. Over here you can see that formation of alkyl radicals. Recently it has come in the exams. 2020 is written over there for this purpose. Now alkyl radicals क्या हैं? They are derivatives of alkanes. के alkanes में से अगर हम CH2 को remove कर दें या एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो जो पीछे रिमेनिंग चीज बचेगी दैट इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, कि हमने उसको डिराइव किया है, अहस किया है, निकाला है अल्केन से. So it is going to be the derivative of alkanes. It is very important blank as well, means MCQ. The dash are derivatives of alkanes. So answer is alkyl radicals. How they are going to be formed? They are going to be formed by the removal of one of the hydrogen atoms. Means we have methane CH4. When we remove one hydrogen atom, the remaining is CH3. That is derivative. उसके साथ एक line लगी होगी आगे, that is very important, and it is showing that it is a radical. And we denoted it by the letter R. You can see it. Their name is written by replacing ANE. अल्केन का जो आप देखें ANE ही है, उसको हम replace कर देंगे YL से. Like if you go on the table, I am also sharing with all of you the page of that one. It's over here. You can see methane, METHANE. जब हमने उसमें से ये देखें एक ऑक्सीजन एटम को निकाल दिया तो बन गया CH3. When it is getting CH3 तो ये ANE को हमने YL से रिप्लेस कर दिया and it is going to be methyl. Methane, METHANE. We have just removed ANE and we have put YL over there, so it's going to be methyl. ठीक है. Same is the case with remaining one. इथेन की बात करें, उसमें से एक आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, that is going to be C2H5 and it is named as ethane. ANE को हटा के YL लगा दें, ethyl. Same case with propane, that it has 8 hydrogen atoms. When we remove one hydrogen atom, there is C3H7 and what does it comes? It comes propyl. ठीक है, समझ आ रही है फातिमा बेटे? समझ आ रही है? Fatma, did you got it or not? Yes, miss.
Okay. Harun, what about you? It will be more easy. चलें, अब देखें, आप मुझे बताएं, हमने अल्केन पढ़ा है, अल्केन जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो मीथेन का क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? Yes, Abibullah, I can't hear you properly. What is the formula of methane? हबीबुल्लाह, आपने बुक खोली हुई है बेटे? Yes, miss. देखें, इसमें 67 पेज जो मैंने शेयर किया हुआ है, इसमें एक टेबल नजर आ रहा है आपको? Yes, miss. इसमें देखें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? अल्केन का नेम क्या है? मीथेन? नो नो, CH4. लुक एट द मोलेक्युलर फॉर्मूला. Yes. क्या है? CH4. ठीक है, अब हमने कहा है कि हमने अल्काइल रेडिकल कैसे बनाने हैं, कैसे डिराइव करने हैं? हमने सिंपली एक हाइड्रोजन रिमूव कर देनी है. अब मैं आपको कह रही हूँ यू हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स, आपने एक रिमूव कर दिया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास? 3. CH3 हो गया. आप आगे देखें, अल्काइल रेडिकल के नीचे लिखा हुआ CH3. Yes. अब ये आ गया अल्काइल रेडिकल मीथेन का. अब हमने इसका नेम लिखना है. नेम क्यों, मैं आपको बता दी, जैसे मीथेन है ना, METHANE, अल्केन में देखें मीथेन, ANE लिखा हुआ है, उसको आप हटा दें और उसकी जगह YL लगाना है आपने सब में, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? मिथाइल. सो मिथाइल इज अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन. क्या बोलेंगे हम? मिथाइल CH3 इज अल्काइल रेडिकल ऑफ मीथेन. समझ आया? Yes, miss. अब इसी तरह से अगले को अगर हम देखें, इथेन को, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी? Yes, miss. इसका molecular formula C2H6. तो उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस ठीक कर है, देंगे तो C2H5 बन जाएगा. राइट, और फिर वो शाबाश. तो उसका नेम कैसे हमने डिराइव किया? सॉरी, दोबारा बोले, नेम कैसे डिराइव किया? मिस वायर लगा के इथेन का हमने ANE रिमूव कर देना है और वहां पे YL लगा देना है. अब अगर आप इस टेबल को देखें, ठीक है, आप समझ आ गया ना हबीबुल्लाह? Yes, miss. चलें, ठीक है. अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी बच्चे को, दे कैन स्टॉप मी ओवर देयर, ताकि हम उस कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लें, देन वी मूव ऑन. ठीक है, अब अगर हम आगे अगली इसकी देखें सक्सेसिव मेंबर को, दैट इज प्रोपेन, वेयर कार्बन इज 3. अगर आपने वो प्रीवियस टेबल याद किया हो, एल्सा ने मुझे चेक करवाया था, डेफिनेटली एल्सा को बेटर समझ आ रही होगी, बिकॉज शी हैज रिटन वंस दैट व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन. तो जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे, यू आर अनेबल टू डू इट. मतलब जुबानी कलामी करने वाली चीज ही नहीं है ये, टिल द मोमेंट यू आर अनेबल टू राइट इट ऑन रजिस्टर्स और कॉपीज. ठीक है, अब प्रोपेन है, प्रोपेन के अंदर जहां पे भी प्रोपेन आएगा, वहां पर 3 कार्बन एटम्स आएंगे. इवन जब आप आगे अल्कीन्स और अल्काइंस को भी स्टडी करेंगे, ओवर देयर यू कैन आल्सो सी, जैसे प्रोपेन अल्केन है, लेकिन जब हम अल्कीन की बात करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी प्रोपीन एंड प्रोपाइन. वेट, सेम इज द केस विद द टेबल. नाउ यू कैन सी प्रोपेन. प्रोपेन में हाइड्रोजन है हमारे पास 8. We are going to deduct 1 hydrogen if there is C3H7 and the name will be propyl. ANE को हटा देंगे, YL लगा देंगे. Now Elsa, can you please tell me about next one? ब्यूटेन. ब्यूटेन के साथ हम क्या करेंगे तो वो ब्यूटाइल बन जाएगा? Butane is an alkane and its molecular formula is Alkene. No. Elsa, listen to me. Alkane. alkyne.
अल्केन, ठीक है, अल्केन। Okay. So या its molecular formula is C4H10. If we remove one hydrogen atom from its molecular formula, it will become C4H9, which will be alkyl radical. And to derive its name of alkyl radical from its name butane, we will replace ANA to YL, and it will be butyl. शाबाश, शाबाश, गुड। अभी तो बुक से आप लोग देख के बताने हैं, बट यू शुड नो द फॉर्मूलाज बाय योरसेल्फ। कोई इशू ही नहीं है इसमें। आपने सिर्फ इसको जिस तरह से याद नहीं करते हैं 1 2 3 इस तरह से, आपके पास जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, आप इस फॉर्मूला को पुट करें, यू विल गेट द होमोलोगस सीरीज बाय योरसेल्फ। बस उसके नेम आपने याद करने हैं कि जहाँ पे सिंगल है वो मिथेन है, जहाँ पे 2 एटम्स कार्बन के आ जाएंगे इथेन है, 3 आ जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटेन, देन पेंटेन, 6 हेक्सेन, हेप्टेन इज फॉर 7। अब मुझे फातिमा आप बताएंगी बेटे, फातिमा कुरैन, कैन यू प्लीज टेल मी फॉर द पेंटेन हाउ वी आर गोइंग टू नेम इट अल्काइल रेडिकल पेंटेन। जल्दी जल्दी से बताएं, वी हैव वेरी लेस टाइम। Its molecular formula is C5H12, and if we subtract one hydrogen atom, it will be alkyl radical C5H11, and it will be pentyl. Pentyl. How we are going to say it's pentyl? कैसे हमने क्या किया? We have क्या किया हमने? Pentane. No. देखें, नाम की बात कर रही हूँ. That was okay, perfectly fine with molecular formula. But how we derive the name pentyl? Pentane. We have A N E at the end of pentane. उसको remove कर दिया and we simply alkyl radical के लिए we put YL. So it will be pentyl. ठीक है? Okay, Fatma? Okay. Yes. Who one else wants to? Habibullah. Next one, hexane. Hexane is the molecular formula of alkene hexane is C6H14, and we will remove one hydrogen from hexane. It will become C6H13. Yeah. Its name we will remove A and E, and we will put YL. Its name it will become hexyl. शाबाश, गुड। होप ये आप सबको अंडरस्टैंड अब हो चुका होगा। हारून, दानियाल, बेटे यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम यू पीपल। सो आपने डिकेन तक सेम इसी तरह से करना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू आल्सो हैव टू मेक दिस फॉर्मूला, दिस टेबल एट योर होम ऑन योर रफ कॉपीज। ताहा लीव इट। Okay. So it was all about the alkyl radicals. Now अब आपको मैंने पहले जब structural formulas पढ़ाए थे, over there I have also told you कि वहाँ पर कुछ जो है आपको एक ही मतलब let's say अगर हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं तो there are certain ways to write it down. जैसे हम एक long chain की तरह भी लिख सकते हैं इसको, और हमने आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल के तौर पे भी लिखा था प्रोपेन को। सेम इज द केस, यू कैन सी इन द पेज अंडर द टेबल कि वहां पे प्रोपेन का फॉर्मूला है। प्रोपेन को इन्होंने कैसे लिखा है? वी हैव द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली मेक कार्बन, 3 कार्बन आप बनाएंगे विद अ सिंगल बॉन्ड 1 2 3। देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप पहले और दूसरे फर्स्ट एंड लास्ट वालों की वैलेंसी हाइड्रोजन की 3 3 रखेंगे, तो 3 और 3 6, और 2 रह गए हाइड्रोजन, वो हम सेंटर में प्लेस कर देंगे। दिस इज प्रोपेन। लेकिन हमारे पास 2 वेज हैं इसको लिखने के, ठीक है? अब उन वे